नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड? एड मीन्स हेल्प, है ना, इसलिए फर्स्ट एड कहते हैं, दैट मीन्स द फर्स्ट हेल्प विच एनिमल विल गेट, दैट इज फर्स्ट एड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट. सो व्हाट आर टैक्सोनॉमिकल एड्स? टैक्सोनॉमिकल एड्स आर दोज टूल्स विच हेल्प अस इन which helps us in taxonomy. Which next taxonomical aid, that is museums. Next, this image is of a botanical garden. Botanical garden. Zoological parks are just the animal equivalent of botanical gardens, right? They are just the animal equivalent of botanical gardens. ठीक है, botanical gardens में हम क्या करते थे? Various types of plants को ला करके वहाँ पे grow करते थे, and we used to conserve the plants. Here in zoos, what do we do? In zoological parks, we bring various types of animals. You know that, right? We bring various kinds of animals from different habitats, and then we give them protection, and we keep them there, right? So what were the four basic processes of taxonomy? We read in NCERT that the four basic processes to taxonomy were characterization, identification, classification, and then it was nomenclature, है ना. So we need to identify and characterize organisms. Now how will you identify and characterize any organism? First, you will have to collect various types of species which have been known in the world, right? You need to know all the type of species which have been known to the world. You will have to have a place, मतलब एक you need to have a source, you can consult that source, है ना. What happens whenever you get confused about anything, you just go and open your NCERT to look into that topic, right? So just like that, for taxonomy, for identifying any species, you need to have a source you can consult to for identifying and taxonomy of that particular organism. That is the purpose of taxonomical aids, right? Taxonomical aids are like a storehouse, or they are like the information of all the organisms which have been known in this earth, right? They help in taxonomy. So now we are going to study about various types of taxonomical aids, various types of things which help us with taxonomy. The first one, so we are studying about the topic taxonomical aids. Taxonomical aids. So the first taxonomical aids which we are going to study about is herbarium. ठीक है, herbarium. Herb means that the plants are classified into three types, right? Herbs, shrubs, and trees. So herbs are the smallest types of green plants which are found, right? So herbarium is like the storehouse of many plants and of many types of all the types of plants, right? So herbarium. Now how is storage happening in herbarium? See, in herbarium dead plants are stored, right? There is no living plant which is conserved in herbarium, rather whatever plants you have, they are in dead form, right? And how are you going to preserve the plants in dead form, right? They are preserved on something called as herbarium sheets. They are preserved on herbarium sheets. Okay? We have herbarium sheets on which we dry the plant, and then we pin the plant, we stick the plant onto the herbarium sheet, right? Now you can ask me one question, ma'am, अगर कोई बहुत बड़ा सा tree है, right? The tree of eucalyptus is so tall, right? How are we going to store this plant in herbarium sheet? Sheet पे तो उसको नहीं रख सकते एक बड़े से tree को. So what happens is, if the plant is very small, we just take that plant and we put it onto the herbarium sheet. But if a plant is very big, we take one part of that plant and then put it into the herbarium sheet. So now next question आपका यही होगा, मैम क्या साइज होता है herbarium के sheet का? So the size of herbarium sheet is 41 into 29 centimeter square. So the size of herbarium sheet is 41 into 29 centimeter square. और अगर आप इंचेस में बात करें तो 16.5 into 11.5 इंचेस स्क्वायर में होता है ये.
ठीक है, इंचेस स्क्वायर। अब आप समझना कि अगर आप किसी भी प्लांट को ऐसे डायरेक्ट ले करके अगर आप अर्बेरियम शीट में रखते हो तो क्या होगा, अगर कोई भी प्लांट आप अपने घर पे ऐसे ही रखोगे तो क्या होगा, दैट विल यू नो उसमें फंगस लग जाएगा, दैट विल गो बैड, राइट, वो सड़ जाएगा। सो हाउ डू यू नो इफ समवन हैज गिवन यू अ रोज, हाउ डू यू प्रिजर्व दैट रोज? तो आप लोग में से पक्का बच्चे बोलेंगे मैम हम जाकर के उसको बुक के अंदर डाल देते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू नो पुटिंग इट दैट रोज इनटू द बुक? द पर्पस इज दैट द पेपर्स विल absorb all the moisture and when the moisture is absorbed the things don't go bad, है ना, वो सड़ता नहीं है moisture, because सड़ना और decaying के लिए moisture is a very important factor, right? So first of all these you know these specimens they are first dried, right, and after drying they are also poisoned. poison क्यों किया जाता है? poison नहीं करेंगे हो सकता है कुछ कीड़ा उसको खा जाए, कुछ कीड़े उसको खराब कर दे, उसमें कुछ लग जाए. so to prevent it then it is after drying, first it is dried, then after drying it is poisoned. ठीक है, ड्राई करने के बाद जो भी स्पेसिमेन होते हैं उनको पॉइजन किया जाता है. पॉइजन किया जाता है किस चीज़ से? मर्क्यूरिक क्लोराइड से, है ना, HgCl2 और मर्क्यूरिक क्लोराइड. ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड से इसको पॉइजन किया जाता है. एंड व्हेन आफ्टर इट इज पॉइजन इट इज फिक्स्ड एंड इट इज केप्ट इन द herbarium in various of the various of racks which is present in the herbarium. You can consult the diagram which is given in your NCERT. Right, now let us look into some more details of this herbarium sheet. ठीक है, अब देखो ये herbarium sheet में क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ information यहाँ पे लगा हुआ है. Are you seeing this? There is some information which has been put in the right hand corner. ठीक है, ये information क्या है? This information on the left hand corner, I am sorry, left hand down corner, यहाँ पे क्या होता है? This is the information. किस चीज़ का इंफॉर्मेशन होता है? दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पीशीज विच हैज़ बीन कलेक्टेड, है ना. आप अगर इसको प्लांट का स्पेसिमेन तो आप रख दिए, बट ये है क्या, कहाँ से आया है, क्या है, देयर नीड्स टू बी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. सो दिस लेफ्ट हैंड कॉर्नर यहाँ पे आपका सारा इंफॉर्मेशन रखा रहता है ना. क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है? आपके एनसीईआरटी में लिखा है डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखा रहता है, उसका कॉमन नेम्स लिखा रहता है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा रहता है, उसके कलेक्ट करने वाले का नाम लिखा होता है, कलेक्टर का नाम लिखा होता है. ठीक है, और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है वो लिखा रहता है ना. किंगडम, ऑर्डर, कैसे कैसे होता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट. सो अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो उसमें जीनस और स्पेसिफिक नेम, तो जीनस और स्पेसिफिक नेम तो ऐसे ही आ गया, उसके साथ उसके फैमिली का भी नेम मेंशन रहता है, राइट. सो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन रहता है? लेट अस राइट इट डाउन, है ना. दिस इज द लेफ्ट हैंड कॉर्नर जहाँ पे जो रहता है ना. तो क्या क्या चीज़ रहता है आपका? देयर इज प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस जगह से मिला था, है ना. जैसे मैंगो का ट्री है या आपका मान लेते बासमती राइस है, तो अगर बासमती राइस का प्लांट हम लोग रखते तो ऑब्वियसली दैट वुड हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया में कहाँ रखा था? दैट इज द प्लेस ऑफ कलेक्शन, है ना. प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन कब मिला था, व्हेन वाज दिस स्पीशीज डिस्कवर्ड, है ना. हो सकता है कि एक और मुझे स्पीशीज मिला, अभी मेरे को लगा वो नया स्पीशीज है. ठीक है, तो नया स्पीशीज तो क्या वो मैं फिर जाके उसको अर्बेरियम में रख दूंगी? नहीं, फर्स्ट आई विल गो एंड सर्च इन दैट अर्बेरियम कि कहीं पहले तो ऐसा स्पीशीज कोई नहीं मिला है, राइट. सो दैट इज वाई द फर्स्ट टाइम व्हेन अ स्पीशीज वाज डिस्कवर्ड उसका टाइम ऑफ आपका कलेक्शन भी वहाँ पे लिखा रहता है ना, टाइम ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन. ठीक है, अदर देन दैट उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम, नेम ऑफ फैमिली. मैंने बोला आपका साइंटिफिक नेम में आपका स्पेसिफिक नेम एंड जेनेरिक नेम भी आ जाएगा, उसके साथ आपका नेम ऑफ फैमिली भी रहता है ना, नेम ऑफ फैमिली. ठीक है, नेम ऑफ फैमिली, उसके अलावा आपका कलेक्टर का नाम, है ना. नेम ऑफ फैमिली हो गया, उसके साथ और एक और नेम रहता है, दैट इज कॉमन नेम, है ना, कॉमन नेम रहता है. और फाइनली और आपका क्या रहता है? देयर इज ये नेम ऑफ कलेक्टर, किस इंसान ने उस स्पीशीज को खोजा था पहली बार, दैट इज गिवन हियर, है ना, नेम ऑफ कलेक्टर. ठीक है, उसके साथ उसका इंग्लिश में भी नेम रहता है ना, इंग्लिश नेम ऑल्सो. कॉमन नेम्स मीन्स जो भी उस लोकल एरिया में है ना, अगर वो प्लांट मिला है तो उस लोकल एरिया में वो किस नाम से जाना चाहता है, दैट इज द कॉमन नेम. उसके अलावा व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इन इंग्लिश, दैट इज ऑल्सो रिटन, राइट. सो इंग्लिश नेम.
सो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशंस विच आर कंटेन्ड ऑन द अर्बेरियम शीट. तो अगर आपसे क्वेश्चन आए अर्बेरियम शीट में क्या रहता है, बच्चे पहले एक तो स्पेसिमेन रहता है अर्बेरियम में शीट में, है ना, द स्पेसिमेन ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट. इफ दैट प्लांट इज स्मॉल द होल प्लांट इज केप्ट, अदरवाइज अ पार्ट ऑफ द प्लांट इज केप्ट एंड फिक्स्ड, राइट, एंड दिस इंफॉर्मेशन along with it is placed, right. Now 2-3 more things about herbarium is that herbarium, how are the plants arranged in herbarium, right. So the plants in herbarium are arranged according to the universally accepted system of classification. आपका NCERT क्या कहता है कि universally accepted system of classification. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वी आर स्टडी, तो उस हिसाब से आपका वहाँ पे रखा रहता है ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बट एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ विच इज नॉट मेंशन्ड इन NCERT इज दैट इन इंडिया बेंथम एंड हुकर सिस्टम, देयर इज अ नेम, you just need to know the name of the classification. There is a type of classification called as Bentham and Hooker system of classification which was given by Bentham and Hooker, and this based on this classification the herbariums are arranged in India, right. है ना, तो इंडिया में कैसे अरेंज होता है, इन इंडिया इट इज अरेंज इन द फॉर्म बाय द सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर, ठीक है, ऑलराइट. और एक चीज़ है विच यू नो बहुत बार MCQ में आया है, गिवन इन NCERT, दैट herbariums serve as quick referral systems, right. Herbariums serve as quick referral systems. क्विक रेफरल सिस्टम कहने का क्या मतलब है, अगर आपको कोई कभी भी रेफर करना है अबाउट एनी प्लांट, यू कैन क्विकली गो एंड सी द अर्बेरियम, है ना. अर्बेरियम आप जाइएगा, क्लासिफिकेशन के हिसाब से ढूंढिएगा, आपको उस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड, दैट इज म्यूजियम्स, ठीक है. म्यूजियम्स क्या होता है, म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर ऑल द ओल्ड थिंग्स आर केप्ट, राइट, वेयर ऑल द ओल्ड थिंग्स आर केप्ट. सो यहाँ पे आपका जो म्यूजियम्स रहते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या चीज़ रखा जा सकता है ना. एक तो आप सबको जानते होंगे ना, मैम स्केलेटन इज केप्ट, राइट. सो द स्केलेटन ऑफ द ओल्ड ऑर्गेनिजम्स दे आर केप्ट इन द म्यूजियम, फ्रॉम वेयर वी कैन नो अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म. उसके नीचे में उसका इन्फॉर्मेशन भी लिखा रहेगा कि वो किस ऑर्गेनिज्म का था, है ना, उसका क्या स्पेशलिटीज था, उसका नेम क्या था, एनी थिंग विच इज रिक्वायर्ड, है ना. उसके अलावा म्यूजियम में और क्या रह सकता है, एक तो स्केलेटन हो सकता है, ठीक है. उसके अलावा आपका NCERT कहता है कि इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है ना, इंसेक्ट्स को किल करके उनको पिन कर दिया जाता है, एंड दे आर केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्सेस, है ना. इंसेक्ट्स आर केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्सेस, ठीक है. और क्या बोला जाता है, जनरली इट इज फॉर एनिमल्स, राइट, म्यूजियम इज फॉर एनिमल्स, है ना. और यहाँ पे क्या रखा जाता है, कोई भी एनिमल अगर बिग है, जैसे कि हाथी हो गए, जिराफ हो गए, सो हाउ आर दे केप्ट, उनको डी स्किन कर दिया जाता है, उनका स्किन लेकर के उसको किसी सॉफ्ट चीज़ से उनको स्टफ कर दिया जाता है, एंड दैट स्टफ्ड स्किन इज केप्ट इन द म्यूजियम, राइट. स्टफ्ड स्किन इज केप्ट इन द म्यूजियम, ओके. सो दिस इज अबाउट म्यूजियम एंड अर्बेरियम. म्यूजियम एंड अर्बेरियम में आपका दोनों का एक कॉमन चीज क्या है, द कॉमन थिंग इज इन बोथ ऑफ देम देयर आर नो लाइव ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. जो भी चीज यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं वो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स है ना, वो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स है. नेक्स्ट दिस इमेज इज ऑफ अ बॉटनिकल गार्डन, ठीक है. बॉटनिकल गार्डन, ठीक है. बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, इन बॉटनिकल गार्डन, अर्बेरियम में क्या था, ऑल द डेड प्लांट स्पेसिमेंस वर केप्ट, बट इन बॉटनिकल गार्डन वी ग्रो प्लांट्स, राइट. वी कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड देन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द बॉटनिकल गार्डन. तो बॉटनिकल गार्डन आपका 3 पर्पस सॉल्व करता है ना. फर्स्ट पर्पस तो क्या हो गया, दे हेल्प इन टैक्सोनॉमी, है ना, वो टैक्सोनॉमिकल एड की तरह काम करते हैं, दे हेल्प इन टैक्सोनॉमी. दूसरा क्या हो गया, आप सोचो, सिंस इसमें आप बहुत अलग अलग तरह के, यू आर ग्रोइंग वेराइटी ऑफ काइंड्स ऑफ प्लांट्स, राइट. सो हाउ डज दिस सर्व, दिस सर्व्स एज अ मोड ऑफ कंजर्वेशन,
है ना, दिस सर्व्स एज अ मोड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, है ना, आप नहीं कह सकते आप इतना बड़ा एरिया में यू आर ग्रोइंग वेरियस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, राइट, तो क्या हो जाएगा, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ मोड ऑफ कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन फॉर प्लांट्स, और इस टाइप के कंजर्वेशन को हम कहते हैं ex situ कंजर्वेशन, ठीक है, इस टाइप के मोड ऑफ कंजर्वेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ex situ कंजर्वेशन। ex situ मतलब ex मतलब दो तरह का वर्ड होता है, दो तरह का कंजर्वेशन होता है एक्चुअली, ex situ एंड in situ, है ना। in situ क्या होता है, in situ मीन्स ऑर्गेनिजम्स आर कंजर्व वेयर दे आर फाउंड, जहाँ पे पाए जाते हैं वहीं पे कंजर्व किए जाते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक नेचुरल हैबिटेट है और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट को ही प्रोटेक्ट करके वहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है, दैट टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन, है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है जहाँ पे कि वो नेचुरली नहीं मिलता है, मतलब कि उसको कहीं बाहर में वो मिलता था, उसको किसी और प्लेस पे लेके आया गया और वहाँ पे उसको कंजर्व किया जा रहा है, मतलब other than the natural site of that organism. This type of conservation is called as ex situ conservation, right? So it also serves as a mode of conservation which is ex situ conservation, right? This you will study about it again in your class 12th, है ना, ecology unit. लास्ट इसका और कौन सा फंक्शन हो सकता है, it serves for recreational purposes. Recreational purpose मतलब you can, you know, there is this whole beautiful garden where various types of trees and plants are grown, right? कितना सुंदर दिख रहा है. So you can go and visit botanical gardens and that is why they also serve as a recreational tool, right? You can go and visit these botanical gardens, they are very beautiful. ठीक है, so let me tell you about the examples of botanical garden which have been given in NCERT. The most बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ दिस वर्ल्ड इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, है ना। आपके एनसीईआरटी में बस क्यू इंग्लैंड लिखा है, प्लीज उसको मार्क करके लिख लो, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, है ना। द बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ दिस अर्थ इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, इट इज प्रेजेंट इन क्यू इंग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में दिया है नेशनल इंडियन बॉटनिकल गार्डन विच इज प्रेजेंट इन हावड़ा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज प्रेजेंट इन हावड़ा इंडिया, वेयर इज हावड़ा, वेस्ट बंगाल, है ना, हावड़ा वेस्ट बंगाल, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज प्रेजेंट इन लखनऊ। National Botanical Garden, National Botanical Research Institute, I'm sorry, it is Research Institute, it is National Botanical Research Institute, National Botanical Research Institute, this is present in Lucknow, ठीक है। विद दिस वी एंड बॉटनिकल गार्डन्स, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपके एनसीईआरटी में आपका अर्बेरियम्स के बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है, अर्बेरियम के बारे में मेंशन नहीं है, प्लीज़ राइट डाउन। आप अर्बेरियम पे वापस जाएंगे, मेरा स्लाइड वहाँ बंद हो गया था इसलिए मैं भूल गई, अर्बेरियम पे आप वापस जाएंगे एंड प्लीज़ राइट डाउन द नेम्स ऑफ अर्बेरियम्स विच आर प्रेजेंट, है ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्बेरियम इज अगेन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, है ना। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड तो एक बॉटनिकल गार्डन है ही, उसके साथ इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अर्बेरियम ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द लार्जेस्ट, वेयर इज द लार्जेस्ट अर्बेरियम ऑफ दिस वर्ल्ड लोकेटेड, सो दैट इज अगेन द रॉयल बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू इंग्लैंड, है ना। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन आपका सेंट्रल नेचुरल अर्बेरियम कैलकाटा में भी है ना। इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड एंड सेंट्रल नेचुरल अर्बेरियम, सेंट्रल नेचुरल अर्बेरियम इन कैलकाटा, ये कहाँ पे है, कैलकाटा में आपका, इंडिया में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट अर्बेरियम एंड ये अर्बेरियम में प्लीज आप ऐड कर लेंगे, एंड दिस इज अबाउट बॉटनिकल गार्डन, है ना। बॉटनिकल गार्डन आपको तीन चीज़ याद रखना है। बॉटनिकल गार्डन का क्या क्या फंक्शन था, इट हेल्प्स एज अ टैक्सोनॉमिकल एड, इट हेल्प्स एज अ मोड ऑफ ex situ conservation and it also helps us with recreational purposes. Okay, next, है ना। This is zoological parks.
ठीक है, दिस इज जूलॉजिकल पार्क. जूलॉजिकल पार्क बोले तो जूस विच यू कॉमनली विजिट, राइट, जू. ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स क्या हो गए, जूस है ना, कॉमन लैंग्वेज में जू विच यू नॉर्मली विजिट, है ना. तो जूलॉजिकल पार्क्स आर जस्ट द एनिमल इक्विवेलेंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स, राइट, दे आर जस्ट द एनिमल इक्विवेलेंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स. ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स में हम क्या करते थे, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स को ला करके वहाँ पे ग्रो करते थे एंड वी यूज टू कंजर्व द प्लांट्स. हियर इन जूज व्हाट डू वी डू, इन जूलॉजिकल पार्क्स वी ब्रिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, you know that, right, we bring various kinds of animals from different habitats and then we give them protection and we keep them there, right. So again the function of zoological parks will be same as that of botanical garden, right. क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, they act as a taxonomical aid. ठीक है, they act as a taxonomical aid. सेकेंड आपका क्या हो जाएगा कि दे एक्ट एज अगेन अ मोड ऑफ ex situ conservation, right. We are bringing the animals out of their natural habitat and then we are conserving those animals somewhere else. That is why they also serve as a mode of ex situ conservation. ठीक है, ex situ conservation, है ना. एंड थर्ड क्या हो जाएगा, अगेन चिल्ड्रन गो, है ना, आई एम ऑल्सो द चिल्ड्रन, आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड, राइट. सो आई गो टू द जू एंड आई एंजॉय लुकिंग एट वेरियस ऑफ द एनिमल्स देयर. सो अगेन जू सर्व एज अ रिक्रिएशनल पर्पसेस, है ना. जूज ऑल्सो हेल्प एज रिक्रिएशनल पर्पसेस. Zoo also serve as recreational purpose. Okay, I hope you don't have any problem with this. We end zoological parks and botanical garden, है ना. तो herbarium और museum एक तरह का था where we used to keep the dead plants and animals, and zoological gardens, zoological parks and botanical gardens, they are also a mode of ex situ conservation. That is why we keep live plants and animals there. Okay, so in all these four, you know what was common, what was one thing which was common was that in all these four places we had the you know we physically had the part of the plant or part of the animal present, then only we, you know, it acted like a source, है ना. आप चाहे herbarium देखो चाहे जूलॉजिकल पार्क देखो, उसमें यू हैड दैट पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट वेदर लाइव और डेड. ठीक है, द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज कीज, राइट. एंड दिस की देर इज नो फिजिकल की प्रेजेंट, है ना. कोई भी यहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज नहीं होता है. द फर्स्ट थिंग अबाउट की इज दैट दे आर एनालिटिकल इन नेचर, राइट. यू विल हैव टू एनालाइज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस की एंड दैट इज वाई दे आर एनालिटिकल इन नेचर. यहाँ पे कोई भी मटीरियलिस्टिक स्पेसिमेन नहीं होता है ना. सो फर्स्ट थिंग लेट अस स्टडी अबाउट की एंड प्लीज राइट डाउन हियर देयर इज नो मटीरियलिस्टिक स्पेसिमेन प्रेजेंट इन की, है ना. बाकी चारों में आपका क्या था, मटीरियलिस्टिक स्पेसिमेन प्रेजेंट था. की में आपका मटीरियलिस्टिक स्पेसिमेन प्रेजेंट नहीं होता है ना. तो की को हम कैसे टैक्सोनॉमिकल एड की तरह यूज करते हैं, की को हम एनालाइज करते हैं, है ना. की को हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये क्या बोल रहा है, वी थिंक ऑन इट, है ना. ये स्टेटमेंट, ये की क्या मेरे को बता रहा है, वी थिंक ऑन इट एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन. दैट इज व्हाई योर एनसीईआरटी सेज एंड एक्चुअली इट इज दैट कीज आर एनालिटिकल इन नेचर. एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है. कीज आर एनालिटिकल इन नेचर. ठीक है, यहाँ पे एक की का अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखेंगे ना. की में क्या होता है, की हैज गॉट टू स्टेटमेंट्स, राइट. की हैज गॉट टू स्टेटमेंट्स. इन दोनों स्टेटमेंट को मिला करके हम कपलेट कहते हैं. ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम कपलेट कहते हैं, है ना. और एक स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं, LEAD, है ना. एक स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका लीड 1 हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट आपका लीड 2 हो गया, है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी हियर, है ना. कोई एक एनिमल मुझे मिला, ठीक है, कोई एक एनिमल या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म मुझे मिला. अगर मुझे उसको क्लासीफाई करना है तो मैं कैसे करूँगी, है ना. कोई एक एनिमल है ना, बट दैट एनिमल हैज़ फर.
If that animal has fur, you will go on this side, है ना. And generally these two leads, one more thing, these two leads they are based on contrasting characters, है ना. ये जो कपलेट होते हैं आपके, these are based on contrasting characters. Contrasting characters मतलब अगर ऊपर वाला कुछ बोल रहा है तो नीचे वाला लगभग उसका ऑपोजिट बोल रहा होगा, ताकि आप क्या करेंगे, you will choose one lead and you will eliminate the other and then you will move forward with one lead. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना. Let me demonstrate it to you with an example. ठीक है, तो फर्स्ट की आपका क्या हो गया, इट हैज फर, इट डज नॉट हैव फर, है ना. तो अगर आप देखते हैं कि अगर वो फर है तो वो आपका मैमल हो गया. ठीक है, अगर फर नहीं है तब आप क्या देखेंगे कि उसके पास फेदर है या नहीं है ना. जस्ट लाइक दिस, इसमें आपका टू स्टेटमेंट्स होंगे ना. लीड वन, लेट अस सपोज इट से इट हैज फर, इट हैज फर, है ना. और लीड टू आपका क्या बोला, इट डज नॉट हैव फर, इट डजंट हैव फर. ठीक है, ऐसे हो गया. तो अब इसके बाद क्या किया, जैसे अगर मान लेते हैं यस इट डज नॉट हैव फर, है ना. तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या करेंगे, आई विल एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट, देन आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट, है ना. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, इट डज नॉट हैव फर. फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट की देखेंगे, है ना. इसके आगे का नेक्स्ट की क्या है, इट हैज फेदर. तो फिर उसी तरीके से अगेन आपका दो लीड आ जाएगा, इट हैज फेदर, इट हैज फेदर, इट डज नॉट हैव फेदर, इट डजंट हैव फेदर, है ना. ऐसे करके फिर आप देखेंगे कि हाँ चलो फेदर है, तो आप ये वाला एलिमिनेट कर दिए, फिर आप इधर से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे. तो जस्ट लाइक दिस व्हाट यू विल डू, यू विल कीप ऑन गोइंग एंड फाइनली यू विल रीच अ कंक्लूजन एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म देयर, है ना. सो दिस इज व्हाट इज की. सो की का आपका स्पेशलिटीज क्या है, की इज एनालिटिकल इन नेचर. की आपका दो स्टेटमेंट्स का बना होता है, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला करके हम क्या कहते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को हम मिला करके कपलेट कहते हैं. और यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट होता है दैट इज नोन एज अ लीड, है ना. तो एक की में आपका एक कपलेट में दो लीड होता है एंड दीज टू लीड्स दे आर बेस्ड ऑन ऑपोजिट कैरेक्टर्स, दे आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सच दैट यू कैन चूज वन कैरेक्टर एंड यू कैन एलिमिनेट द अदर, है ना. और आप याद रखना हर ऑर्गेनिज्म के लिए या हर टैक्सा के लिए, हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए आपका अलग अलग की होता है, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन अलग अलग होगा, इसलिए अलग अलग की होता है. और फाइनली आप एक कंक्लूजन में रीच करते हैं ना. तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट ऑल द प्रीवियस फोर टैक्सोनॉमिकल एड्स which we studied, they were materialistic in nature. We had the specimen present there whether alive or dead. ठीक है, but in key we don't have any specimen. Keys are analytical in nature. ठीक है, I hope you don't have any problem. मोर और लेस आपका खत्म हो गया है. इसके अलावा एनसीईआरटी आपका 3 या 4 चीज़ और डिस्कस करता है. ठीक है, बस इन वेरी शॉर्ट. फर्स्ट इज फ्लोरा, है ना. फ्लोरा के साथ आपका फौना होता है. फ्लोरा फौना क्या होता है, इट इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ फ्लोरा अगर हो गया तो एक्चुअल अकाउंट ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, दिस इज फ्लोरा. और एनिमल्स के लिए भी फौना यही होता है. फौना आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट फ्लोरा फौना साथ में चलता है. आई होप बचपन से आप पढ़े हैं, है ना. फौना क्या होता है, ऑल द एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन इन अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, उसके बाद आपका होता है मैनुअल. एक्चुअली मैनुअल आपका प्लांट्स के बारे में बताता है, बट एनसीईआरटी में ऐसा लिखा नहीं है कि मैनुअल प्लांट्स के बारे में बताता है. ठीक है, सो प्लीज आप समझना कि मैनुअल जो है वो एक एरिया में आपका कौन कौन सा जो भी आपका स्पीशीज मिलता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है ना, उसके बारे में आपको बताता है. मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ इज वन, है ना. मैं यहाँ पे लिख दूँ व्हाट आर द टर्म्स गिवन इन एनसीईआरटी. ठीक है, इट इज फ्लोरा, फ्लोरा हमने डिस्कस कर लिया. मैनुअल्स, मैनुअल्स क्या होता है, एक एरिया में जो भी स्पीशीज मिलते हैं उनके बारे में बताएगा. फ्लोरा इज स्पेसिफिकली वन रीजन एट वन टाइम, स्पेसिफिकली अबाउट प्लांट्स. फौना इज स्पेसिफिकली अबाउट एनिमल्स ऑफ वन रीजन एट वन टाइम. ठीक है, मैनुअल क्या हो गया, मैनुअल में आपको एक एरिया के जितने भी स्पीशीज होंगे उनके बारे में बताएगा. ठीक है, एंड मैनुअल्स आर जनरली अबाउट प्लांट्स, है ना. मैनुअल जनरली आपका प्लांट के बारे में बताया. नेक्स्ट इज मोनोग्राफ, है ना. मोनोग्राफ, मोनोग्राफ से आप समझ पा रहे हैं, मोनो, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स वन, राइट. सो मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन. एक किसी एक, जैसे मोनोग्राफ ऑन ग्रेन लेग्यूम्स, तो सिर्फ ये किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा, ये ग्रेन लेग्यूम्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेगा. ठीक है, तो मोनोग्राफ टेल्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन. मोनो से याद रखना एक, है ना, एक टैक्सॉन के ऊपर वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा. एंड लास्ट वन इज कैटलॉग. ठीक है, कैटलॉग, है ना. कैटलॉग आपने देखा है किसी भी चीज़ का कैटलॉग, दिस इज एन इंग्लिश वर्ड, है ना. तो कैटलॉग में क्या रहता है, देयर इज अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज विच आर फाउंड इन एन एरिया, है ना. कैटलॉग आपके एनसीईआरटी में जिक्र भी नहीं किया हुआ, बस नाम लिखा है, बट आप याद रख लेना. कैटलॉग में आप क्या याद रखोगे, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट.
ठीक है। सो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग। फ्लोरा के साथ आप फौना भी याद रखना, फ्लोरा इज फॉर प्लांट्स एंड फौना इज फॉर एनिमल्स, ठीक है। फ्लोरा इज फॉर प्लांट्स एंड फौना इज फॉर एनिमल्स। सो आई होप आपको इस चैप्टर के वीडियोस पसंद आए होंगे। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, बट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज किसी साल में कई बार क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। बट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने के लायक है नहीं इस चैप्टर में, बट आपका एक क्वेश्चन आ जाता है तो दैट क्वेश्चन एक्ट्स एज अ बोनस। अगर आप अच्छे से पढ़ ले, काफ़ी ईजी चैप्टर है। ओके, थैंक यू, वी विल मीट।